Assalamu alaikum. I hope you people are doing well and good morning for non-Muslim. We have today's topic of discussion is about groundwater occurrences, and you people know about what is meant by groundwater and what are its main attributes. And I think there are so many uh, issues for discussing about these terminologies, but my little bit knowledge is here for discussion about their origin, their origin तो नहीं कह सकते खैर, their about their occurrences. So to describe the occurrences of groundwater necessitates a review of where and how groundwater exists. Subsurface distribution in both vertical and aerial extents need to be considered. Geological zones are important for groundwater, and as well as their structures in terms of their holding capacities, their yielding capabilities. So if their conditions furnish water to underground zone, the subsurface strata govern its distribution and movement. Hence the important role of geology in groundwater hydrology cannot be overemphasized. Springs, hydrothermal phenomena, and water in permanently frozen ground constitute special groundwater occurrences. सो मैंने आपको यहाँ डिटेल में मैं बताना चाह रही हूँ कि ग्राउंड वाटर्स कैसे हैं और इनको किस तरह हम डील करते हैं. तो ये सारे ग्राउंड वाटर बेसिकली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से ही इन्वॉल्व है. सच मैंने आप लोगों को वो सर्कल दिखाना था प्रॉपर जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का है. अच्छा चले, मैं आपको वो भी किसी दिन दिखाऊंगी. इट इंक्लूड सर्फेसिस एंड एटमॉस्फेरिक वाटर्स. रिलेटिवली माइनर अमाउंट्स ऑफ ग्राउंड वाटर्स एंटर दिस साइकिल फ्रॉम अदर ओरिजिन्स. सो देर आर सो मैनी देर ओरिजिनल. अगर उनको देखें ना उनका ओरिजिन, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर्स हमें मिलते हैं. तो यहाँ मैं जो बता रही हूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैंने कह लो गो थ्रू किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो 4 टाइप्स हैं. और फर्स्टली कोनेट है, फिर मैग्मेटिक है, फिर जुवेनाइल है, एंड देन आई थिंक मेटामॉर्फिक है. सो हाँ जी, इट्स मेटामॉर्फिक. सो the water that has been out of contact with the atmosphere for at least an appreciable part of a geological period is termed connate water. Essentially, it consists of fossil interstitial water that has migrated from its original burial location. Or this water derived from oceanic or freshwater sources and typically is highly mineralized. नेक्स्ट है मेरे पास मैग्मेटिक वाटर. और ये वाटर्स क्या होती हैं? दीज वाटर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मैग्मा. you know people what is meant by magma. So where the separation is deep, the term plutonic water is also applied there, while volcanic water designates water from relatively shallow depths. अच्छा, यहाँ डेप्थ की बात की हुई है, तो डेप्थ्स मैं आपको बता दूँ ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर को शैलो डेप्थ्स कहते हैं. जो उससे नीचे के होते हैं तो उनको हम डीप जोन्स कहते हैं. सो नेक्स्ट मैं आपको बताने लगी हूँ जुवेनाइल वाटर का क्या है. तो जुवेनाइल वाटर है न्यू वाटर ऑफ मैग्मेटिक और कॉस्मिक ओरिजिन that has not previously been a part of hydrosphere is referred to as juvenile water. And next है metamorphic water. It's water that is or has been associated with rocks during their metamorphism. Simple illustrations and simple, इसमें बात है, कोई मतलब कह लो एम्बिगिटी नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है जिसमें बंदा बैठ कर परेशान हो जाए कि ये चीज़ें कैसी हैं.
बहुत आसान है। आप लोग जब ये चीज़ें नोटिस में लाते हो या करते हो तो ये चीज़ें आई थिंक इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग एंड हाँ। नेक्स्ट मैं आपको बताने लगी हूँ रेजिडेंस टाइम जो होता है। रेजिडेंस टाइम क्यों हम डिस्कस करते हैं, इसका ग्राउंड वाटर के ओरिजिन से क्या इसका मेन पर्पस है। तो ये बहुत इसमें ज़रूरी है कि ये हम इसको स्टडी करें। अच्छा, अब रेजिडेंस टाइम ऑफ वाटर जो है ये ऑलवेज बीन अ टॉपिक ऑफ कंसिडरेबल स्पेकुलेशन, बट जब रेडियो आइसोटोप्स डिटर्मिनेशंस हमें मिल गई, हमने ट्राइटियम कार्बन 14 जो आइसोटोप्स हैं इनको जब हमने यूटिलाइज़ किया तो हमें जो रेजिडेंस टाइम था उसको वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे लिए बहुत आसानी हो गई थी। सो टाइटेनियम और tritium with a half-life of 12.33 years is produced in upper atmosphere by cosmic radiation carried to earth by rainfall and hence underground. This natural level of tritium begins to decay as a function of time. So यहाँ पर मैंने एक फार्मूला भी अप्लाई होता है। ए कैपिटल ए है, इसको ऑब्जर्व्ड रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, और ए नॉट है। ये ए नॉट क्या है, ये वो एक्टिविटी है एट दैट टाइम जब वाटर एंटर होता है एक्वाफर में। फिर है लैम्डा ई माइनस लैम्डा आर, एंड लैम्डा इज़ द डिके कांस्टेंट एंड सॉरी आर नहीं है, ये टी है, स्मॉल टी, इट इज़ एज ऑफ वाटर। सो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं करते हैं तभी हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज आती है, अदरवाइज़ हमें नॉलेज नहीं आ सकती। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक पेज है, एक इलस्ट्रेशन सॉरी डायग्राम है, मैं इलस्ट्रेशन कह जाती हूँ। तो ये कहाँ गया कैमरा, कैमरा फोकस नहीं कर रहा दरअसल। आई एम सॉरी, कैमरे को आज पता नहीं क्या हुआ। खैर, तो जुवेनाइल वाटर से मैग्मेटिक वाटर की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती हैं, कन्वर्जन हो जाती है, और फिर मेटामॉर्फिक और ओशियानिक में। ये बस एक तरह के ना इसकी वाटर की जेनेटिक टाइप बताई हुई है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप बताई हुई है कि कैसे इनका आपस में रिलेशन है। और नेक्स्ट क्या है, जो ट्राइटियम है इज़ एप्लीकेबल फॉर एस्टिमेटिंग ग्राउंड वाटर रेजिस्टेंस टाइम ऑफ अप टू 50 ईयर्स। यू कैन अगर आप लोगों को नहीं मतलब देखें, 50 साल तक की जो रेजिडेंस टाइम है वो ट्राइटियम बता सकती है, और जो कार्बन 14 है ये अबाउट 50,000 ईयर्स तक बता सकती है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इन चीज़ों को जब हमने लैब्स में इन चीज़ों में जब यूटिलाइज़ किया तो हमें काफ़ी नॉलेज मिली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड रिमेंबर मी इन प्रेयर्स। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।